Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for Computer Science with Python. In our previous videos, we have covered the chapter of list manipulation in Python. I hope all the concepts of this chapter is crystal clear now. Now, in this video, we are going to discuss some most important questions from exam point of view of the chapter list. I request you to watch the video till end so that at the end of video, your concepts must be crystal clear. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon to get the updates of all upcoming videos. So let's start now with the first question. What is the difference between the following expressions? These four expressions are given to you and you have to find out the difference between these. And the list is given to as you 1, 3 and 5. एक LST list given है, इसमें आपको ये 3 elements given है. And you have to identify the difference generally between these two and these two. And you know my main motto is to clear your concepts. So all the questions जहाँ पर भी possible होगा we will try to implement practically also. So that आपके जितने भी concepts हैं वो एकदम clear हो जाएं. I don't want कि मैं ऐसे questions read करूँ फिर उसको solve करूँ. No. अगर आपके practical concepts clear हैं तो आप कोई भी question को easily attempt कर सकते हो. So let's start with the first question. एक आपको list given है, उसमें elements हैं 1, 3 and 5. हमने एक list ले ली. अब उसके बाद देखो list into 3 and list into equals to 3. इन दोनों में देखो क्या difference है. If I am writing LST into 3, अब ये मेरे list है and this is my replication operator and this is integer, तो that means ये मेरे list को इतने times क्या कर देगा, replicate कर देगा, means repeat कर देगा. 135, 135, 135, 3 times. But अगर मैं LST को print कराऊं, क्या मेरी original list change हुई? No. ठीक है. अब अगर हम second part की बात करें, LST into equals to 3. अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो दिस मीन्स LST इक्वल्स टू LST इंटू 3 कि LST इंटू 3 करो और जो भी वैल्यू आए उसको हमने किस में असाइन कर दिया, LST में. तो अब क्या मेरी LST ओरिजिनल जो लिस्ट है वो चेंज होगी? यस. सो द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट टू पार्ट्स, LST इंटू 3 विल रिटर्न दिस लिस्ट बट इट विल नॉट अपडेट द ओरिजिनल लिस्ट. ओरिजिनल लिस्ट को वो अपडेट नहीं करेगा. Whereas in the case of LST into equals to 3, it will update the original list also. Now see these two cases, LST plus 3. Now let me take the original list because original list अब change हो गई है. If I am writing LST plus 3, now this is concatenation operator and this is list or this is integer. Can we concatenate a list with integer? No. So then it will show you the error. Can only concatenate list to list. अब fourth part list plus equals to 3. अब ये 3 आपको किसकी फॉर्म में गिवन है बेटा? लिस्ट की फॉर्म में. अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो दिस मीन्स LST इक्वल्स टू LST प्लस 3. यही मीनिंग होगा इसका. दैट मीन्स अब मैं एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से क्या कर रही हूँ, कंकेटिनेट कर रही हूँ. और किस में असाइन कर रही हूँ? ओरिजिनल लिस्ट में. तो अब ओरिजिनल लिस्ट में क्या आ जाएगा, 135 जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट के कंटेंट्स हैं और मैंने साथ में क्या ऐड कर दिया, कंकेटिनेट कर दिया 3. So I hope first question is clear to you now. Second question, given 2 list. आपको ये 2 list given है बेटा. L1 this is a list. Let me just write it here. And L2 this is another list. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो ये L1 है ये सिंपल लिस्ट है बट L2 इज माई नेस्टेड लिस्ट. नाउ रीड द क्वेश्चंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल कॉज एन एरर एंड व्हाई. कि आपके किस एक्सप्रेशन में जो उसमें एरर आएगा और किस में नहीं आएगा. और अगर एरर आएगा तो आपने रीजन लिखना है. L1 डबल इक्वल्स टू L2. L1 डबल इक्वल्स टू L2. नाउ सी हियर, are these two lists same? No, so it will return false. But ये error नहीं show करेगा यहाँ पर. ठीक है, it will just compare the list. If both the lists are equal, so then it will return true. Otherwise, it will return
false. Now next है बेटा L1 dot upper. If I am using L1 dot upper, L1 मेरी क्या है बेटा, लिस्ट है. क्या मैं लिस्ट पर अपर फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ? नो. अपर फंक्शन तो मेरा किसके साथ यूज होता है? स्ट्रिंग के साथ. बट L1 इज माई लिस्ट. सो इन दिस पार्ट इट विल शो द एरर. लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर. मीन्स इन लिस्ट वी डोंट हैव एनी मेथड विद नेम अपर. अब नेक्स्ट है L1 3 dot upper. Here I am writing L1 3 dot upper. अब अगर मैं L1 3 की बात करूं, 0 1 2 और 3, दिस इज स्ट्रिंग. L1 3 पर मेरी क्या है? स्ट्रिंग. तो वो आपकी क्या हो गई? कैपिटल. ठीक है. अगर मैं L1 को प्रिंट कराऊं तो उसने ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंज नहीं किया. ये तो मेरी L1 3 पर क्या है? स्ट्रिंग. एंड स्ट्रिंग इज माई इम्यूटेबल डेटा टाइप. ठीक है. तो आपकी ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं होगी, तो इसमें आपको एरर शो नहीं होगा. नेक्स्ट इज L2 डॉट अपर. L2 इज ऑल्सो माई लिस्ट, तो अगेन अपर फंक्शन विल रिजल्ट इनटू एन एरर. नेक्स्ट है बेटा L2 1 डॉट अपर. L2, दिस इज माई L2 एंड 1, दैट मीन्स L2 लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स पर. एट फर्स्ट इंडेक्स आई एम हैविंग अगेन लिस्ट, तो अगेन इट विल शो द एरर. L2 and 1 dot upper. ठीक है. L1, let me just correct this to L1. ठीक है. L1, L2 sorry, let me just correct this. L2 लिस्ट में जो 1 नंबर पर है, ये L2 लिस्ट है. यहाँ पर इसमें फर्स्ट इंडेक्स पर मेरी क्या है बेटा? लिस्ट. तो अब ये आपको एरर शो करेगा. Attribute error, list object has no attribute upper. Now next part L2 1 1. ठीक है. Let me just print it here L2. अब L2 1 1 means अगर मैं L2 1 लिख रही हूँ तो वो एक लिस्ट प्रिंट हो रही है. If I am writing L2 1 1, that means फर्स्ट इंडेक्स पर मेरा क्या है? another. अब ये मेरी स्ट्रिंग है, तो that means L2 1 1 पर मैं अपर फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ. और कौन सा स्ट्रिंग है वहां पर? another. तो इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग another into अपर केस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन गिव आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशंस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द एरर. कि हमने जो अभी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जिसमें एरर नहीं आया आपको उसके आउटपुट लिखने हैं, वो हमने इसी क्वेश्चन में साथ के साथ कर लिया. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन अ लिस्ट L1, ये आपको एक L1 लिस्ट गिवन है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द स्लाइसिंग ऑपरेशन. ठीक है. दिस इज योर लिस्ट L1. नाउ विच लिस्ट स्लाइस, दैट मीन्स आपको स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाना है, विल रिटर्न दिस लिस्ट. ठीक है. लेट मी जस्ट राइट द इंडेक्स हियर. Just a second. Zero, then 1. Let me just write the index on the original list. That will be better. This is at index 0, 1, then 2, then 3, 4 and 5. Now this will be easy to solve the question. 3 is at index 0, 4.5 is at index 1, 12 is at index 2, 25.7 is at index 3, this is at index 4 and this is at index 5. Now beta my question is, which list slice will return 12, 25.7, 2105 this. अब मुझे सिर्फ इतनी चीज चाहिए. ठीक है. तो अब देखो अगर मैं स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाऊं, कहां से स्टार्ट होगा? 0, 1, 2. तो स्टार्टिंग वैल्यू तो मैंने क्या लिख दी? L1 2. स्टार्टिंग वैल्यू 2 लिख दी. अब एंड देखो कहां पर करना है. ठीक है. ये यहां तक चाहिए,
अब स्लाइसिंग ऑपरेशन में जो स्टॉप वैल्यू होती है वो एक कम तक चलता है, तो अब ये जो मुझे लास्ट चाहिए दैट इज एट इंडेक्स 4, तो अगर मैं लास्ट में वैल्यू 5 लिख दूं तो देन इट विल डिस्प्ले मी द लिस्ट एट टिल इंडेक्स 4. Now moving on to the next part, which expression will return this? अब slicing operation नहीं पूछे, which expression means I just want this part. So this is at index 4. So here I am writing L1 4. तो अब मेरा ये आंसर आ गया list 2105. Which list slice will return this? अब देखो सेकेंड और थर्ड पार्ट में डिफरेंस है, इसमें तो ये लिस्ट थी बट इसमें ये क्या है, नेस्टेड लिस्ट. रीजन बीइंग दैट ये मेरी ऑलरेडी लिस्ट है और जब मैं स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाऊंगी तो वो आपको रिजल्ट किसकी फॉर्म में देगा, लिस्ट की फॉर्म. और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 2105. दैट मीन्स मैं 4 से स्टार्ट कर दूं और एंड कहां पर कर दूं, 5 पर. L1 4 एंड देन 5, तो वो सिर्फ फोर्थ एलिमेंट को पिक करके डिस्प्ले करेगा. नेक्स्ट इज विच लिस्ट स्लाइस विल रिटर्न दिस. अब इसमें तो एक्सप्रेशन बताना था बट अब क्या कह रहा है कि मैं लिस्ट स्लाइसिंग ऑपरेशन यूज करना है बट मुझे ये नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 0, बिकॉज ये जो मेरे लिस्ट चाहिए ये एलिमेंट किस इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 2105. नेक्स्ट इज विच स्लाइस लिस्ट स्लाइस विल रिटर्न 4.5 यानी कि दिस, 25.7 एंड देन 88. अब देखो एक एक स्किप करके आ रहा है, ठीक है. स्टार्ट कहां से हो रहा है, 4.5, दैट मीन्स L1 और किस इंडेक्स से हो रहा है बेटा, 1 से, और कहां तक जा रहा है, एंड तक. और स्टेप वैल्यू क्या है, 2 मीन्स पहले ये है 4.5, दिस इज एट इंडेक्स 1. फिर जो नेक्स्ट है 25.7, दिस इज एट इंडेक्स 3, तो दैट मीन्स 1 + 2, फिर 3 + 2 5. तो स्टेप वैल्यू कितने की है बेटा, 2 की, और स्टॉप वैल्यू नहीं लिखी तो आपका एंड तक चलेगा. तो यही आपको एक्सप्रेशन लाना था इसमें. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड विल रिजल्ट इन. अब आपको ये कोड गिवन है बेटा, ठीक है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा. L1 equals to 13579. Let me just write it here. L1 मेरी एक लिस्ट है 135. Can write it in the Python shell also. Let me just write it there. Yes. L1 list 1, 3, 5, 7 and then 9. अब बेटा प्रिंट L1 डबल इक्वल्स टू L1 डॉट रिवर्स. L1 डॉट रिवर्स उसको क्या करेगा, मेरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा और ओरिजिनल लिस्ट में ही करेगा, ठीक है. और ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता है, तो ओरिजिनल लिस्ट जो L1 है क्या ये मेरी 97531 की इक्वल होगी, डबल इक्वल्स तो क्या आ जाएगा, फॉल्स. और फिर जब मैं L1 को प्रिंट करूंगी तो मेरी जो लिस्ट क्या है वो म्यूटेबल टाइप की है, तो जब मैंने उसमें रिवर्स फंक्शन लगाया तो मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स. तो वो आपको क्या शो करेगा, 97531. लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस. प्रिंट L1 डबल इक्वल्स टू L1 डॉट रिवर्स. अब ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट को क्या कर देगा, रिवर्स. तो योर आंसर विल बी फॉल्स फॉर दिस प्रिंट फंक्शन एंड दिस 97531 लिस्ट फॉर दिस लास्ट प्रिंट फंक्शन. Now let's move on to the next question. Predict the output. अब आपको एक ये लिस्ट गिवन है बेटा, my list, और इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम. Let me just open my Python shell. ये आपको एक लिस्ट गिवन है. Let me just correct the string. ठीक है, इट्स फाइन नाउ. अब देखो मुझे क्या करना है, माई लिस्ट मीन्स मैंने इस पर स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाया, 2:3. 2:3 मीन्स ओनली 2, सेकेंड इंडेक्स. और सेकेंड इंडेक्स पर मैंने क्या लिख दिया, एम्प्टी लिस्ट मीन्स वो उस एलिमेंट को हटा देगा. और फिर मुझे क्या प्रिंट करना है, माई लिस्ट. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, माई अंडरस्कोर लिस्ट
2:3 इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। दैट मीन्स अब मेरा सेकेंड इंडेक्स पर जो भी होगा वो एम्प्टी लिस्ट वो चला जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैं माई लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी तो इट विल डिस्प्ले PRBLEM, तो इसमें से O चला जाएगा। अब नेक्स्ट इज, हमने प्रिंट करा दिया माई लिस्ट। आफ्टर दैट माई लिस्ट में हमने क्या किया, M will be small here, 2:5, 2:5 मीन्स 2, 3 and 4, और वहां पर मैंने क्या कर दिया, एम्प्टी लिस्ट। सो अगेन माई लिस्ट 2:5, 2, 3, 4 मीन्स दिस इज एट इंडेक्स 0, 1, 2, 3 and 4। तो अब सिर्फ क्या रह जाएगा बेटा, P, R and M, and when I'm going to print the list, so then it will display P, R and M. So this is your final answer. Now beta, next question, predict the output of the following. This list is given to you. Next is print list1 dot index 18. Index function क्या करेगा, it will return the index of that element. If there are more than one elements in that list, so it will return the index of the very first element जो match करेगा। अब now see, this is the list and the index of 18 is 1. This will not count this. तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा, 1। तो इस प्रिंट फंक्शन के लिए आंसर क्या लिखोगे अपना, 1। list1 dot count 18. It will count how many times 18 are there in the list. Let's count that 1 and 2. तो then it will display 2. तो आप नेक्स्ट लाइन में आंसर में क्या लिखोगे, 2। list1 dot append. append मीन्स लिस्ट में ऐड करना है, ओरिजिनल लिस्ट के एंड में ऐड करेगा। और क्या अपेंड करना है, list1 dot count 13। पहले इसको सॉल्व करेगा। अब काउंट करो 13 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1, 2 and 3। तो इट विल अपेंड 3 at the end of this original list. तो जब मैं लिस्ट 1 को प्रिंट कराऊंगी, दिस इज माई ओरिजिनल लिस्ट एंड एट द एंड इट हैज एडेड 3। और 3 क्यों करा, बिकॉज 13 इज देयर इन द लिस्ट 3 टाइम्स। तो जब हम लिस्ट 1 को प्रिंट कराएंगे, इट विल प्रिंट दिस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द लिस्ट इज गिवन टू यू एज odd इक्वल्स टू 135। अब देखो मुझे प्रिंट कराना, क्या प्रिंट कराना है, सी हियर odd. Let me just write it here. Yes. अब जो मेरे पास लिस्ट गिवन है odd, that is 1, 3 and 5. ठीक है, अब मुझे क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, odd plus 2, 4, 5 और इसका इंडेक्स 4। Let me first add these two lists. Okay. odd means 135 plus 245. तो 1, 3, 5, 2, 4 and 5। और इसके बाद 4 का मीन्स कि जो मेरी ये लिस्ट है इसमें इंडेक्स 4 पर कौन सी वैल्यू है। अगर मैं इंडेक्स 4 की बात करूं तो दिस इज एट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 इंडेक्स पर मेरा बेटा कौन सा एलिमेंट है, 4। तो व्हाट इट विल डिस्प्ले, 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। अब देखो odd प्लस 12, 14, 16, इसका इंडेक्स 4 माइनस odd प्लस 2, 4, 6 और इसका इंडेक्स भी 4। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है। मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई है, पहले हम लेफ्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फिर राइट पार्ट। अब odd की वैल्यू क्या है बेटा, 135। तो आई एम राइटिंग इट हियर डायरेक्टली, 1, 3, 5, 12, 14, 16, इसका इंडेक्स 4। ठीक है, माइनस अब यहां से क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 2, 4 and 6 और इसका इंडेक्स भी 4। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से इसका 4th इंडेक्स लिखूंगी तो दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4। 4th इंडेक्स पर क्या है बेटा, 14 माइनस इधर से देखो 4th इंडेक्स पर 0, 1, 2, 3, 4।
ठीक है, क्या है यहाँ पर 4, तो 14 माइनस 4, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा 10 फॉर दिस स्टेटमेंट. नाउ लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस. तो अब हमारा आंसर क्या आया बेटा 10. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं. ए बी सी इक्वल्स टू 1 2 1 2 1 2, ये मुझे लिस्ट गिवन है. ए में भी मेरे पास लिस्ट है 1 2, बी में भी और सी में भी. ठीक है, नाउ ए डबल इक्वल्स टू बी, कि क्या मेरे लिस्ट ए डबल इक्वल्स टू मीन्स क्या वो दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल है, उसमें भी 1 2 है, उसमें भी 1 2 है, तो देन इट विल रिटर्न ट्रू. अब नेक्स्ट देखो मुझे क्या प्रिंट कराना है, ए इज बी. इस ऑपरेटर क्या करेगा, क्या ये मेमोरी में सेम लोकेशन पर स्टोर है? वी कैन चेक दिस विद द हेल्प ऑफ आईडी फंक्शन. आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी एंड आईडी ऑफ सी. सी, now the ID of all these three variables A, B and C are different. Means ये आपके मेमोरी में डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर है. तो अगर डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर है तो A इस भी मुझे क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स. तो करेक्ट आंसर इज ट्रू फॉर दिस इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड फॉर दिस ऑपरेटर इट विल रिटर्न फॉल्स. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? ट्रू कॉपी और शैलो कॉपी का, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी और आपका कंसेप्ट क्लियर है. अगर नहीं देखिए तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स. ये टू पार्ट्स गिवन है आपको. अब बताना है कि क्या मेरे आउटपुट सेम आएंगे या नहीं. ठीक है, अब मेरे को दो लिस्ट गिवन है L1 और L2 और दोनों में मेरे पास वैल्यू क्या है 2 एंड 4. L1, L2 इक्वल्स टू 2, 4 और उसमें भी मेरे पास क्या है 2 एंड 4. दो वैल्यूज हैं, दोनों लिस्ट में सेम है. अब देखो L3 इक्वल्स टू L2, दैट मीन्स जो मेरे पास L2 में लिस्ट है वो मैंने किस में असाइन कर दी? L3 में. तो असाइनमेंट ऑपरेटर से करने से क्या होगा कि उसकी मेमोरी में एक ही कॉपी क्रिएट होगी. मींस L2 और L3 मेरे दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट करेंगे. अब एक ही लोकेशन को पॉइंट करेंगे तो अगर मैं एक लिस्ट में चेंज करूंगी तो दूसरे में भी उसका इफेक्ट रहेगा. ठीक है, तो L2 वाले लिस्ट में मैंने फर्स्ट इंडेक्स पर क्या कर दिया 5. नाउ दिस इज माय लिस्ट L2. इसमें मैंने फर्स्ट इंडेक्स पर क्या कर दिया 5. तो जब आप L2 को प्रिंट कराओगे ये तो प्रिंट करेगा 2 और 5, बट L3 को जब आप प्रिंट कराओगे उसमें भी 2 और 5 प्रिंट हो रहा है. ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से. बट इफ आई वांट कि ऐसा ना हो, वो मेरी जो हम असाइन करेंगे वो एक इंडिपेंडेंट कॉपी बने, फॉर दैट वी हैव टू यूज द लिस्ट फंक्शन. अब देखो मेरे पास L1 और L2 दोनों सेम लिस्ट हैं. अब मैंने विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन L2 की वैल्यू L3 में असाइन कर दी. ठीक है, अब वो मेमोरी में सेम लोकेशन पर पॉइंट नहीं करेंगे. इफ यू वांट टू चेक तो आप आईडी फंक्शन से इसकी आईडी चेक कर सकते हो. अब मैंने L2 में तो फर्स्ट इंडेक्स पर चेंज कराया, बट जब मैं L3 को प्रिंट कर रही हूँ तो वो आपकी ओरिजिनल मींस वो इंडिपेंडेंट है तो उसका चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा. नाउ सी दिस, L1 मेरी ये लिस्ट है 2 और 4. L2, let me just write this statement again. अब L3 इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन को कॉल किया एंड L2. अब मैं जब L2 में फर्स्ट इंडेक्स पर 5 करूंगी, L2 में तो चेंज हो रहा है बट L3 में उसका रिफ्लेक्ट नहीं होगा. विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शंस वो दोनों कॉपीज आपकी क्या हो जाएंगी? इंडिपेंडेंट हो जाएंगी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this we have to find the errors. अब देखो आपको फर्स्ट L1 ये एक लिस्ट गिवन है, L1 plus 2. This will show error because we cannot add a list with an integer value. L1 into 2, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लिस्ट को हम इंटीजर के साथ रेप्लिकेट कर सकते हैं. L1 dot index 45. This will show you the error because index जो 45 एलिमेंट है वो आपका लिस्ट में नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट प्लस दिस स्टेटमेंट विल शो यू द एरर. नेक्स्ट इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है. आपको लिस्ट गिवन है. अब L1 डॉट रिमूव 41. 41 इज नॉट इन द लिस्ट,
So this statement will result in the error. अब नेक्स्ट देखेंगे हम L1 इक्वल्स टू, ये आपको लिस्ट गिवन है, L1 डॉट रिमूव 31. ठीक है, रिमूव 31 उसको कर देगा, बट जो मेरा रिमूव फंक्शन है वो कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता है. तो जब मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराऊंगी an+2 तो वो आपको एरर शो करेगा. ठीक है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओ इस स्टेटमेंट में वो एरर नहीं शो करेगा, बट an में कोई वैल्यू नहीं आएगी. लेट मी डू दिस प्रैक्टिकली. नाउ सी दिस इज माय लिस्ट. सॉरी, कॉपी नहीं हुई. लेट मी जस्ट राइट इट हियर. ये मेरी एक L1 लिस्ट है, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं. ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, an इक्वल्स टू L1 डॉट रिमूव 98. अब ये 98 वाले एलिमेंट को तो रिमूव कर देगा, कोई एरर नहीं आया. बट अगर मैं an को प्रिंट कराऊं उसमें तो कुछ है ही नहीं. तो जो मेरे प्रिंट फंक्शन है an+2 वाली स्टेटमेंट, दैट रिजल्ट इनटू द एरर. तो इस स्टेटमेंट से आपको एरर आएगा. नाउ दिस इज द आउटपुट बेस्ड. नाउ सी दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. अब आपको ये एक लिस्ट गिवन है बेटा x. ठीक है, जस्ट लेट मी जस्ट राइट इट हियर. x और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 2, 5. उसके बाद y आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, एम्प्टी स्ट्रिंग. आई एम राइटिंग इट हियर. अब while x, दैट मीन्स x में आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, पहले 3, फिर 2 और फिर 5. तो पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, x में क्या आएगा 3. सेकेंड केस में x में क्या आएगा बेटा 2. और थर्ड केस जो होगा मेरे पास, उसमें x की वैल्यू क्या आएगी 5. ये 3 केसेस होंगे. अब उसके बाद देखो, जब मेरे पास x में 3 है तो मुझे अब ये चीज सॉल्व करनी है. ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे. y इक्वल्स टू y प्लस x ऑफ -1. दिस. अब y तो मेरी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, प्लस x ऑफ -1. x मेरी क्या है, लिस्ट 3, 2 और 5. और -1 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है बेटा 5, और वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है. दो स्ट्रिंग को मैं कंकैटिनेट कर सकती हूँ. तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, विद इन कोट्स 5. और x की वैल्यू आपने क्या लिखनी है, x कॉलन मीन्स बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, लेंथ ऑफ x. लेंथ ऑफ x मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं, 3 -1, तो क्या हो जाएगा 2. तो x में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x इक्वल्स टू विद इन द लिस्ट आएगी, मीन्स 0 और 1 इंडेक्स पर होंगे, तो दैट मीन्स 3 and 2. इतना क्लियर हुआ. अब उसके बाद x में वैल्यू क्या आएगी 2. अब दोबारा से मेरा while लूप चलेगा. अब y इक्वल्स टू y प्लस x ऑफ -1. अब y में मेरे पास क्या है बेटा 5. अब एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, वी विल कंसीडर द न्यू वैल्यूज, प्लस x ऑफ -1. अब x कौन सा लोगे, ये वाला बेटा 3 और 2. ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 पर क्या है 2. तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब y इक्वल्स टू स्ट्रिंग विद इन स्ट्रिंग 5 and 2. और यहां से मैं उसको क्या कर दूंगी, x इक्वल्स टू x मीन्स स्लाइसिंग ऑपरेशन, लेंथ ऑफ x. अब लेंथ ऑफ x क्या है बेटा 2, 2 -1 1. तो ये आपका मीन्स सिर्फ क्या लेगा, 0th एलिमेंट को 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट. लेंथ ऑफ x 2, 2 -1 1. तो सिर्फ ये कौन सा एलिमेंट लेगा स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए, जो मेरा किस इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर, दैट मीन्स 3. ठीक है, अब x में वैल्यू क्या आएगी बेटा 5, जो मेरा लास्ट केस है. अब y इक्वल्स टू y प्लस x ऑफ -1. अब y इक्वल्स टू y में मेरे पास कौन सी स्ट्रिंग है बेटा, विद इन कोट्स 52 प्लस x ऑफ -1. x में एक ही एलिमेंट है मेरे पास 3. अब स्टार्टिंग भी वही है, एंडिंग भी वही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3. तो y इक्वल्स टू, अब मेरे पास y में यहाँ से वैल्यू क्या हो गई स्ट्रिंग में, y इक्वल्स टू 5, 2 और 3. ये मेरे स्ट्रिंग की फॉर्म में हो गई. ठीक है, और x की वैल्यू x इक्वल्स टू
x कॉलन लेंथ ऑफ x, लेंथ ऑफ x क्या है बेटा 1, 1 माइनस 1 0, 0 कॉलन 0, सॉरी 0 कॉलन 0। तो अब तो ये कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब जब ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, y और x। y की वैल्यू तो बेटा कौन सी आ जाएगी मेरी 5, 2 और 3, और प्रिंट फंक्शन है तो हम विदाउट कोट्स लिखेंगे स्ट्रिंग की वैल्यू, और x की वैल्यू मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट। और इसी के साथ मुझे डिस्प्ले कराना है टाइप ऑफ y एंड टाइप ऑफ x। टाइप ऑफ y क्या है बेटा, स्ट्रिंग, तो कैसे लिखोगे, क्लास और str करके, और टाइप ऑफ x क्या है बेटा मेरी लिस्ट। लेट मी जस्ट इरेज दिस नाउ, टाइप ऑफ x एंड टाइप ऑफ y, ये तो मेरी x और y की वैल्यूज आ गई, पहले y की वैल्यू फिर x की वैल्यू, और जब मुझे टाइप प्रिंट करानी है तो x मेरा किस टाइप का है, लिस्ट का, और y मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। तो इस तरीके से ये इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नाउ लेट मी जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूशन, आप उसका भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो बेटा। अब देखो, नंबर्स इक्वल्स टू, लेट मी जस्ट कमेंट दिस एरिया, कमेंट करने से अच्छा इसको हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को हम पाइथन शेल में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो रेंज फंक्शन मींस 0 से स्टार्ट होगा 50 तक चलेगा, और स्टेप वैल्यू क्या है बेटा 4। ये रेंज फंक्शन काम करेगा, और लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यूज आएंगी ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में, मींस 0 फिर 4 फिर 8, देन 8 + 4 12 + 4 16। तो जब मैं नंबर्स को प्रिंट करूंगी मेरे पास ये लिस्ट आ जाएगी। तो आप चेक कर सकते हो इसमें 4 4 का गैप है, और 0 to 50 तक की वैल्यूज इसमें हैं। तो जो मेरी नंबर्स वाली लिस्ट आएगी वो ये आएगी बेटा। ठीक है, अब रिजल्ट्स नेम से मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है, फाइन फॉर नंबर इन नंबर्स, ये मेरी नंबर्स वाली लिस्ट है। तो नंबर इन नंबर्स मींस एक एक करके सारी वैल्यूज आएंगे इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, इफ नॉट, नॉट तो क्या कर देते हैं, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। नंबर मॉड्यूलस 3, नंबर मॉड्यूलस 3, अब ये चीज देखो, अब नंबर में पहले वैल्यू क्या आएगी 0, 0 मॉड्यूलस 3, वो मेरा क्या आ जाएगा 0। अब जो मेरी नॉन जीरो वैल्यूज है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, वो क्या कंसीडर होगी ट्रू, और 0 मीन्स फॉल्स। तो नंबर मॉड्यूलस 3, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 0, 0 मीन्स फॉल्स। अब ये मेरा नॉट ऑपरेटर इसको क्या कर देगा ट्रू, तो एक तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा 0। अब नेक्स्ट मैं पिक करूंगी 4, 4 मॉड्यूलस 3 0 होगा नहीं, ठीक है, वो 1 होगा, तो 1 मीन्स ट्रू, और ट्रू को जब मैं नोट करूंगी तो क्या आ जाएगा फॉल्स। अब मैं नेक्स्ट पिक करूंगी 8, 8 मॉड्यूलस 3 क्या आएगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, नॉन जीरो मीन्स ट्रू, तो ये उसको क्या कर देगा नोट मेरा फॉल्स। अब जब मैं 12 पर आऊंगी, 12 मॉड्यूलस 3 क्या होता है बेटा, 12 मॉड्यूलस 3 क्वेश्चन 4 रिमाइंडर 0, 0 मीन्स फॉल्स, और नॉट उसको क्या कर देगा ट्रू। तो आप देखो कि जो जो मेरे 3 से डिविजिबल हैं वो मुझे क्या रिटर्न करेंगे, रिमाइंडर 0, दैट मीन्स फॉल्स, और नॉट उसको क्या कर देगा ट्रू। 16 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 20 भी नहीं है, 24, उसके बाद 36, देन 48। अब इन नंबर्स पे कंडीशन ट्रू है, तो दैट मीन्स वो रिजल्ट्स डॉट अपेंड जो है वो ये नंबर जो मेरे रिजल्ट एम्प्टी लिस्ट है, ये नंबर्स वो उसमें अपेंड करेगा। क्या क्या अपेंड करेगा, 0, 12, 24, 36 एंड 48, और एट द एंड मुझे ये रिजल्ट वाली लिस्ट को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। यू कैन नोट डाउन दिस नंबर्स, वो ये रिटर्न करेगा। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, 0, 12, 24, 36 एंड 48, ये क्वेश्चंस, यही नंबर्स बोले थे। Now with this question we have discussed all the important questions of this chapter. I hope आपके सारे questions के सारे concepts एकदम clear हैं. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like this video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.